So very good morning to my dear students. As we have started with the chapter from hunting and gathering to growing food, in that chapter we have studied about that why were the earliest people they keep on moving, why they move from place to place. So we studied about the four reasons: in search of food, for hunting animals, in search of seasonal plants, and in search of water. So these four reasons we studied, okay, and sometimes in search of shelter also. But in present time, we are not moving from place to place for these reasons. Nowadays, we move from place to place maybe to get jobs, maybe for the recreation purpose, ठीक है, for enjoyment purpose, for just to explore the new things. That's why आज के जो reasons हैं that are totally different from the reasons from the past. Then we studied about the stone tools. So these stone tools were used to cut the meat, bones, scrap bark, and the hides of the animals. And they also used to chop the fruit, roots, and these are also attached with the handles of bone and wood to make the spears and arrows. Spears क्या होते हैं? भाले. Spears and arrows, ठीक है, for hunting. And these stone tools are also used to chop wood, and these stone tools are also used to dig out the roots, edible roots. Edibles means जो हम खा सकते हैं, edible roots from the ground. And these are also used to stitch the clothes. उस टाइम पे clothes तो नहीं थे, animal skin used to stitch the animal skin. Then we studied about the sites. Sites क्या है? These are the places where we find the evidences. जो archaeologists हैं, those who study the history from the remains. अब वो remains कहाँ से मिलते हैं? Inside the earth, on the surface of the earth, or in the water. So these are the sites. अगर आप यहाँ पे map भी देखोगे, if you just see the map, there are these places. If you can see Bhimbetka, Hansgi, Kurnool caves. So in these places, we found the evidences related to them. And mostly the people prefer to live near the water resources. Water resources क्यों? Easily availability of water है for transportation, later on for growing crops also. ठीक है? And second thing, they also stayed at those places where the easily availability of the stone. Stones किस लिए चाहिए थे? To make the stone tools. So these were the sites. और इसमें जहां पे जिन साइट्स पे इनको स्टोन्स की अवेलेबिलिटी थी एंड वेयर दीज पीपल मेड द टूल्स, such sites are known as factory sites. Factory sites क्या है? Places where the stone was found and where people made the tools. अगर हम देखा जाए कि ये लोग कहीं ना कहीं रहते भी थे, they used to live also. उसके लिए भी एक अलग इनको हम कहते हैं habitation sites. That are habitation sites, मतलब where the people used to live. Habitation sites. So where they live, mostly कहाँ पे थे, कहाँ पे ये रहा करते थे? Maybe in the caves, rock shelters, natural caves हुआ करती थी, वहां पे रहा करते थे. And these natural caves protect them from the rain, heat, and wind. So this is the meaning of site. जहाँ पे हमें remains, देखो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो हमें कैसे पता लगा कि वो कहाँ कौन से एनिमल्स को हंट करते थे, टूल्स कैसे बनाते थे. So they usually just dig out the ground, they find out the evidences for their study. The next thing that we are going to start today is about the rock paintings. Because they usually live in the rock shelters, वो natural shelters में रहते थे, caves में रहा करते थे. So what they were doing at that time, they used to draw. वो कुछ ना कुछ वहां पे कुछ ड्राइंग बनाते थे जो डिपिक्ट करते थे कि हाउ दे वर हंटिंग एट दैट टाइम, विच टूल्स दे वर यूजिंग. सो फ्रॉम दोज पेंटिंग्स वी कैन कम टू नो अबाउट दिस. तो जो ये रॉक पेंटिंग है, दैट आल्सो हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट टू स्टडी अबाउट दैट. So many of the caves in which these early people lived have paintings. अब इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया है? मध्य प्रदेश एंड द सदर्न उत्तर प्रदेश. अभी मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया था. वी हैव जस्ट सीन द मैप. तो जो भीमबेटका है, दैट साइट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. तो वहां पे जो केव्स हैं, वहां पे हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं रिलेटेड टू द केव पेंटिंग.
And these paintings show wild animals drawn with a great accuracy and skill. मतलब बहुत accuracy से उन्होंने draw किए हैं. How they were hunting, how they planned to hunt them. किस तरह के tools use करते थे उस time पे. So this is about the rock painting. This is one of the picture. Now, this one is again very important, the definition of site. Mark it as important. So what are sites? जो हम sites के बारे में पढ़ रहे थे. Sites are places where the remains of things. कौन सी things के? Tools, forts, buildings were found. जो archaeologists हैं, they found these evidences. They were made, these were made, used and left behind the people. जो लोग वहां पे रहते थे उनको वो बनाते थे, tools बनाते थे, forts बनाते थे. तो वो tools, forts वहां पे रह गए होंगे या वो जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए होंगे तब भी वो वहां पे रह गए होंगे. So these were found. So these may be found on the surface of the earth, buried under the earth. कई बार उनको dig करके निकालना पड़ता है, खोद के निकालना पड़ता है. And sometimes even under water. हो सकता है कि उस टाइम पे वहां पे वाटर ना हो, प्रेजेंट टाइम पे हो सकता है वहां पे अब रिवर फ्लो करती हो. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड आउट द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स. दिस इज अबाउट द साइट्स. और जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, भीमबेटका, हंसकी एंड कुरनूल केव्स. नाउ द नेक्स्ट इज फाइंडिंग अबाउट फायर. Can anybody tell me if you know how early human discover fire? If anyone know about this, just raise hand. Okay, Tanishka. Oh, ma'am, they used to rub the rocks to make fire. Tanishka. Oh, good morning, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए. Ma'am, they used to rub the rocks to make fire. They used to Rub the rocks. rub the rocks. बेटा rocks को कैसे rub कर सकते हैं वो? Stones. और एक बार Ma'am, उनको yeah, ना फर्स्ट से डिस्कवर की, हो सकता है कि वो स्टोन टूल्स बना रहे हो. व्हेन दे वर मेकिंग द स्टोन टूल्स, तो जब टू स्टोन्स को उन्होंने स्ट्राइक किया होगा, हो सकता है नीचे ड्राई ग्रास होगी तो वहां पे स्पार्क गिरा होगा, तो जिससे उनको पता लगा होगा कि इससे फायर भी प्रोड्यूस होती है. ओके ओके. अनवी. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, they rub the stone against each other, and due to friction, the fire passes. Okay. So the same reason. So how they discover the fire? While making the stone tools. जब वो stone tools बना रहे होंगे, maybe जैसे stones को जब एक दूसरे के साथ rub करते हैं, some sparks fell down, नीचे dry grass होगी जिसमें आग लगी होगी. By this they discover the fire. So for what purpose they use the fire? किस purpose के लिए वो fire use कर रहे थे? They use the fire for these purposes as a source of light. एज अ सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि अगर अंधेरा है तो एज अ सोर्स ऑफ लाइट, या केव्स वगैरह में अंधेरा है तो उसके लिए. टू रोस्ट मीट, क्योंकि पहले क्या थे, दे यूजली एट अनकुक्ड फूड, रॉ फूड खा रहे थे. हो सकता है उस टाइम पे जंगल में फायर लगी हो, कुछ एनिमल्स वहां पे बर्न जल गए हो, और जब उन्होंने उनका मीट वगैरह खाया तो उनको वो टेस्टी लगा, इजी लगा, उसको सॉफ्ट लगा उस चीज पे. सो टू रोस्ट द मीट, लेटर ऑन दे स्टार्टिंग कुकिंग द फूड and to scare away the animals को भगाने के लिए. One more reason I can tell you, to protect them from the cold. There are 4 reasons. मैंने आपके साथ 4 reason discuss किए हैं that early human used the fire as a source of light, to roast meat, to scare away the animals and to protect themselves from the cold. Now again the question is there, what do we use fire for today? आज का हम फायर को किस लिए यूज करते हैं? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. हरी अप. फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग टुडे? फॉर कुकिंग. ओके, इट्स ओनली कुकिंग, टू कुक फूड. सेम आंसर. एनी अदर? फॉर अदर रीजन वी आर यूजिंग? यशिका, रॉन्ग. Okay, to get warmth. Okay, to get warmth.
एंड सम जब जैसे अब हम रिचुअल्स करते हैं, अगर हमने वर्शिप वगैरह करनी है, जैसे वी लिट द कैंडल्स और दियास, इन दैट पर्पसेस आल्सो वी आर यूजिंग द फायर. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट इज, अभी तक हमने जो इनके बारे में पढ़ा है, अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है. जो ये अर्ली ह्यूमंस का जो इरा रहा है, जो पीरियड लग रहा है, दैट इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एजेस. बहुत डिफरेंट एजेस में इनको डिवाइड किया गया है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिस बॉक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेम्स एंड डेट्स. तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, दोज हु आर स्टडीइंग द एंशिएंट पास्ट, उन्होंने इस स्टडी को, जो ये स्टोन एज का पीरियड था, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इसमें से जो सबसे पहली एज थी, जो सबसे पुरानी, विच वाज द अर्लीस्ट पीरियड, दैट इज नोन एज द पैलियोलिथिक. अब पैलियोलिथिक है, दैट इज कम फ्रॉम 2 वर्ड्स. वन इज पैलियो, अनदर इज लिथोस. पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथोस का मतलब होता है स्टोन. तो जो हमारी सबसे पहली जो थी स्टोन एज इरा था, दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज. सबसे पुराना जो इरा है, टाइम पीरियड रहा है. तो इसमें जो टाइम पीरियड का जो स्पैन था, हाउ मच लॉन्ग इट वाज फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. अब आप इसमें बोलोगे मैम ये उल्टा टाइम वर्क है, जो ये आप टाइम स्पैन बता रहे हो, दैट इज इन रिवर्स. 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स. बेटा when we studied about the history, तो हिस्ट्री में जो क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनके बर्थ से जो पहले की डेट्स हैं, उनको हम बैकवर्ड काउंटिंग में पढ़ते हैं, बीसी. उनके साथ लिखा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट. तो उस टाइम पे जो ईयर्स होते थे, उनकी बैकवर्ड काउंटिंग हुआ करती थी. पर जैसे ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उसके बाद से हम एडी लगाते हैं, एनो डोमिनी, जहां से जो हमारी काउंटिंग है वो सीरियल वाइज शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6. बट बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम इसको बैकवर्ड काउंटिंग के साथ करते हैं. तो जो पैलियोलिथिक इरा है, दैट वाज फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो. इसका जो टाइम स्पैन था, दैट वाज वेरी मच लॉन्ग. तो ये जो टाइम स्पैन है, इट कवर्स द 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. जो हम अर्लीस्ट ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी 99% जो हिस्ट्री है, दैट वाज कवर्ड अंडर दिस पैलियोलिथिक इरा. और इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा इरा रहा है, तो इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि जो ये पैलियोलिथिक है, दैट कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो which means old, lithos means stone. It means we are studying about old stone age. And the time span, इसका extent कहाँ तक, कब तक रहा है, from 2 million years ago to about 12,000 years ago. ठीक है. And because this era covers the maximum time span of the human history, so this Paleolithic age is divided into further 3 parts, that is lower Paleolithic, middle Paleolithic and अपर पैलियोलिथिक. नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट एज, जो नेक्स्ट एज आई, दैट इज मीजोलिथिक. मीजोलिथिक में जो मीजो है, द वर्ड मीजो मीन्स मिडल. मीजो मीन्स मिडल, इट मीन्स मिडल स्टोन एज. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था पैलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन एज, मीजो मीन्स मिडल स्टोन एज. तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो. इसका भी टाइम पीरियड कितना है, 12,000 टू 10,000. पर आप यहाँ पे देखोगे जो मैक्सिमम टाइम कवर हुआ है, जो मैक्सिमम जो चेंज टाइम लिया है, दैट इज द पैलियोलिथिक इरा. तो इस टाइम पे एक नए तरह के टूल्स बने थे. कैसे थे, इन अ स्मॉल इन साइज. दीज टूल्स वर स्मॉल इन साइज, टाइनी टूल्स वर देयर, एंड इनको कहा जाता था माइक्रोलिथ्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, लिथ्स मीन स्टोन. तो पहले भी स्टोन टूल्स बन रहे थे, वो थोड़े बड़े साइज के थे, इतने ज्यादा पॉलिश नहीं थे, शार्प नहीं थे, पॉइंटेड नहीं थे. पर जब मीजोलिथिक आया, इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी स्टोन टूल्स में इंप्रूवमेंट हुई. दे स्टार्टेड यूजिंग द टाइनी स्टोन टूल्स which were called microliths, and these microliths were stuck on the handles of bone or wood. wood और bone के साथ उनको stuck कर दिया जाता था to make the tools like saws and sickle. सॉ क्या होता है,
Can anybody tell me what is the meaning of saw? Saw. If anyone can tell me what is the meaning of saw? No one? बेटा हिंदी में हम इसे आरी बोलते हैं. That is used to cut the tree. Used to cut the tree. ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आरी. ठीक है, so saw को यूज करते थे. They use them as a saw or sickles. जैसे आजकल हम ग्रास को या प्लांट्स को काटने के लिए सिकल्स यूज करते हैं. So they joined these stone tools with the handles of bone and wood, and these stone tools were further made saws and sickles. अब जो थर्ड पीरियड था, जो हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, दैट इज नियोलिथिक. नियो का मतलब होता है न्यू. न्यू का मतलब न्यू स्टोन एज. ये टाइम पीरियड कहाँ था? अबाउट 10,000 ईयर्स एगो. मतलब 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 तक पैलियोलिथिक, 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 तक मीसोलिथिक, और 10,000 के बाद देयर इज न्यू स्टोन एज. जो हम अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमने नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कि दैट पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स, दे स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप्स, और उस टाइम पे जो टूल्स थे दैट वर वेरी मच रिफाइंड, पॉलिश्ड, that came under this era, that is Neolithic, new stone age. So I am repeating again, जो हमारी stone age period है that is divided into 3 periods: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Paleo means old stone age, Mesolithic means middle stone age, Neolithic means new stone age. इनका टाइम स्पैन कितना है? पैलियोलिथिक फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स टू अबाउट 12,000 ईयर्स, मीसोलिथिक फ्रॉम 12,000 टू 10,000 ईयर्स, एंड नियोलिथिक इज 10,000 ईयर्स. और जो ये मीसोलिथिक वाला टाइम था, मिडिल स्टोन एज वाला टाइम था, एट दिस टाइम मैनी एनवायरमेंटल चेंजेस आल्सो हैपेंड. इस टाइम पे एनवायरमेंटल चेंजेस भी हुए. आपने ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ा होगा. आपको पता है किसी टाइम पे ऑस्ट्रिच इंडिया में भी मिलते थे. हो सकता है यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हुए होंगे जिसके कारण जो ऑस्ट्रिचेस है अब हमारे यहाँ पे नहीं मिलते. ठीक है, कई बार हम जू वगैरह में हमें देखने को मिल जाते हैं, पर नाउ जो है ऑस्ट्रिचेस आर नॉट फाइंड इन आवर कंट्री. बट अर्लियर अगर हम पैलियोलिथिक ईरा की बात करें, एट दैट टाइम देयर वर ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया आल्सो. So till here, if anyone is having any doubt, as I already told you, at the time of Mesolithic period, environment changes took place. और उस टाइम पे क्या environment changes हुए? At that time, development of grasslands. आपने लास्ट टाइम 5th क्लास में ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा होगा, वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स के बारे में, प्रेरीज, वेल्ड. तो जिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो वाले ग्रासलैंड्स बने थे, पर एट दैट टाइम उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी. इन मैनी एरियाज देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. अब ग्रासलैंड थे तो देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स. आपने साइंस में पढ़ा है प्लांट ईटिंग एनिमल. अगर ग्रासलैंड है तो देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दोज हु एनिमल्स दोज हु ईट द ग्रास. तो नेचर इस बैलेंस को बना के रखती है कि अब ग्रासलैंड ज्यादा हो गए हैं, ग्रास है हमारे पास, तो उस टाइम पे जो ग्रास ईटिंग एनिमल थे उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया. सो एट दैट टाइम दे आल्सो फाइंड कि जो ये एनिमल्स हैं इनको हम डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं. इनको मतलब ये एक पर्टिकुलर उनकी ईटिंग हैबिट्स को नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये क्या खाते हैं. सम एनिमल्स they ate other animals, some animals they ate grass only. They started noticing all these things. तभी उनको पता लगा, जैसे लॉयन है तो उनको पता है लॉयन ने ग्रास नहीं खानी है, जो लॉयन है वो अपना शिकार करेगा, हंट करेगा ऑफ द अदर एनिमल्स. पर जो डियर है, गॉट है, शीप है, वो क्या खाएंगे? वो ग्रास खाएंगे. ठीक है, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि जो ये एनिमल्स हैं इनको हम रखना, इनको कलेक्ट करना, इनको हम पालना शुरू करें. हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ दीज एनिमल्स. दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि अब हम इन एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट करें, हर्डिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि उनको पता था कि इन एनिमल्स से हमको मिल्क भी मिल रहा था, इनकी फ्लैश को भी यूज कर रहे थे. ठीक है, दे स्टार्टिंग हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ दीज एनिमल्स एंड फिशिंग अलोंग, बिकॉज दे वर लिविंग अलोंग द रिवर बैंक्स. तो उन्होंने फिशिंग करना भी स्टार्ट कर दिया.
So this is all about the change in the climate. So if you have any query, you can ask.